Welcome dear students, this is another video for class 11th and in this video we are going to discuss very important topic from the biomolecules, right? And the topic you can see is protein structure. So far we have discussed, we have explained the various amino acids, right, that are present in a protein. प्रोटीन में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं एंड जनरली जो प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं उनको हम स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड्स कहते हैं। और स्टैंडर्ड प्रोटीन अमीनो एसिड्स को देखा जाए तो ये 20 हैं, हालांकि दो जो हैं रिसेंटली जिनको हम 22nd अमीनो एसिड्स कहते हैं तो वो भी कुछ प्रोटीन्स में हमें मिल जाते हैं, बट ज़्यादातर जो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो नंबर है, उनका जो टाइप है वो 20 है, राइट। तो उन अमीनो एसिड्स के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। वी हैव क्लासिफाइड दोज अमीनो एसिड्स इनटू वेरियस टाइप्स एंड वी हैव यूज्ड सम क्राइटेरियाज टू क्लासिफाई दोज अमीनो एसिड्स. If you remember, we have classified the amino acids on the structural basis, structural classification, and one more classification is on the basis of nutritional requirement. The amino acids which are present in our food, which must be present in our food, right, the body is not capable of synthesizing them, called essential amino acids. And the amino acids, there are some amino acids which our body is capable of synthesizing, right, they can be formed in the body, so the amino acids called non-essential. We have explained in details the classification of these amino acids, whether it is the structural classification or it is the classification on the basis of nutritional requirement. Today we are going to discuss the protein structure, right? As you know that amino acids are the building blocks of all the proteins, right? So that is why this is the simple definition for proteins when we have to define a protein. So a protein is a polymer of amino acids. एक प्रोटीन के अंदर बहुत सारे amino acids हो सकते हैं. There can be different amino acids and the number of different amino acids in a particular protein, right? But in this video we are going to have a special emphasis on the protein structures. So far as protein structures are concerned, there are various levels that we have to discuss, but before we come to those different levels of the proteins, we have to again understand that how the two amino acids are linked to each other. We have already learned in our class that the amino acids in a polypeptide chain are linked by a special bond. That special bond is called a peptide bond. If you can see the board clearly, on the board this is again a structure of a dipeptide having a single peptide bond between the two amino acids. This is the amino acid 1 and this is the amino acid 2. Between these two amino acids there is a CN bond and this bond is called a peptide bond. So एक प्रोटीन में जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड हो सकता है वो यही बॉन्ड हो सकता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड. तो यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं. यहाँ पे इस डायग्राम में कुछ अमीनो एसिड्स को यहाँ पे बनाया गया है, राइट. ये पहला वाला फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन है, तो दूसरा वाला वैलिन है, ये आइसोल्यूसिन है, फिनाइल एलनिन है, ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन है, राइट. और इनके बीच में जो ये लाइन डाली है मैंने, तो ये इस चीज़ को दिखाने के लिए कि इनके बीच जो बॉन्ड है वो पेप्टाइड बॉन्ड है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन अमीनो एसिड्स की एक लीनियर सीक्वेंस हमें नज़र आ रही है. और एक प्रोटीन में जो ये लीनियर सीक्वेंस होती है एक प्रोटीन में जो ये लीनियर सीक्वेंस होती है एमिनो एसिड्स की, तो इस लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन कहते हैं. सो वी कैन से पहली जो लेवल होगी स्ट्रक्चरल लेवल एक प्रोटीन की, वो होती है इसके एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट एमिनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, राइट. तो उसके बाद ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसमें लीनियर सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स की, तो ये ऐसे नहीं रहेगी, राइट. तो इसकी एक और लेवल हो सकती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी लेवल ऑफ द प्रोटीन. और कभी कभी जो है एक्सटेंसिव फोल्डिंग की वजह से ये जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में भी एग्जिस्ट हो सकती है, जिसको हम कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन.
और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एक प्रोटीन जो है उसके अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हों, राइट, बहुत सारे यूनिट्स हों, तो वो एक बड़ी लेवल होती है प्रोटीन की जिसको हम कहते हैं क्वाaternary लेवल ऑफ द प्रोटीन। सो व्हाट आई मीन टू से दैट देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ द प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हमें समझना है। तो पहली वाली जो लेवल है, पहली स्ट्रक्चरल लेवल जो है प्रोटीन्स की, वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो व्हाट इज, लेट मी राइट ऑन द बोर्ड, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है? What is the primary structure of protein, right? So the primary structure is the linear sequence of amino acids in a polypeptide chain। एक polypeptide chain के अंदर जो linear sequence होगी amino acids की, उस चीज़ को हम primary structure कहते हैं, right? So यहाँ पे हम लिख सकते हैं primary structure के बारे में, linear sequence of amino acids, linear sequence of amino acids in a polypeptide chain, okay? So this is the simple definition for the primary structure, how we can define the primary structure of the protein. So what is the primary structure of the protein, guys? Yes, you can understand, you are good guys. Primary structure of the protein means linear sequence of amino acids in a polypeptide chain. So here I tried to show you the linear sequence of some amino acids. In this is a simple chain. This is not a polypeptide chain which contains the 50 or 100 or 1000 amino acids. This is just for the sake of convenience कि हमने यहाँ पे कुछ एमिनो एसिड्स को रखा है, राइट, और इसमें आप इस चेन में आप क्या देख रहे हैं, ये एक लीनियर सीक्वेंस है कुछ एमिनो एसिड्स की। तो पहला वाला ये है, दूसरा वाला ये है, तीसरा ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स्थ ये है। तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन अगर आप इसको यहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे, वहाँ से भी एक्सटेंड करेंगे, तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐसे ही एमिनो एसिड्स आपको नज़र आएंगे, दिखाई देंगे, राइट। तो और वो जो एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हमें प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन, पोजिशनल इंफॉर्मेशन आई शुड से, it provides the positional information of an amino acid in a polypeptide chain, ये क्या करता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें क्या फ़ायदा होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखने से क्या फ़ायदा होता है, इट प्रोवाइड्स अस द पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एमिनो एसिड, कौन सा एमिनो एसिड किस जगह पे है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो एक छोटी सी चेन है, इसका पहला एमिनो एसिड जो है यहाँ पे नंबर 1 वो ग्लाइसिन है, तो दूसरा एमिनो एसिड जो है वो वैलिन है, तीसरा एमिनो एसिड जो है वो आइसोल्यूसिन है, चौथा जो है ये फिनाइल एलनिन है, राइट, जो सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है, एरोमेटिक एमिनो एसिड है। तो यहाँ पे एक और है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, सॉरी ट्रिप्टोफैन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, वेरी सॉरी, दिस इज द फिनाइल एलनिन। फिनाइल एलनिन के बारे में हमने पढ़ा है, ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। कॉम्प्लेक्स सबसे जो है ट्रिप्टोफैन है, ये भी एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। टायरोसिन भी एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है, तो ये यहाँ पे 6th नंबर पे आता है। एनीवेज वी हैव गॉन थ्रू द एमिनो एसिड्स एंड देयर वेरियस कैरेक्टर्स, राइट, यू कैन गो थ्रू दैट पॉइंट अगैन। एनीवेज, तो यहाँ पे मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कौन सा एमिनो एसिड कहाँ पे है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, ये हमें नजर आएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर पे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है दैट इज प्रोवाइडिंग ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोटीन, एंड दैट इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ एन एमिनो एसिड। ओके, कौन सा एमिनो एसिड कहाँ पे है, किस जगह पे है, किस पोजीशन पे होना चाहिए एक प्रोटीन में, तो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जिस अमीनो एसिड की पोजीशन एक प्रोटीन के अंदर है, राइट, वो उस प्रोटीन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये कोई प्रोटीन है, मेरी बॉडी का कोई प्रोटीन है,
जिसके अंदर ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, राइट। ये कोई प्रोटीन है, ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा हो सकता है, ये मायोग्लोबिन का हिस्सा हो सकता है, और फिर उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर पे अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस जो है वो ये है। और अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो है पहला वाला अमीनो एसिड जो है, फॉर एग्जांपल लेट्स से ग्लाइसिन जो है, इस ग्लाइसिन की जगह पे कोई और अमीनो एसिड रख दें या यहाँ से इसको निकाल ही दें, तो इस पूरे प्रोटीन पे जो है फर्क पड़ेगा। ये कुछ और प्रोटीन बन जाएगा, ये एक डिफेक्टिव प्रोटीन बन जाएगा। तो अमीनो एसिड्स की जो पोजीशन है एक प्रोटीन में, राइट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक प्रोटीन के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए, उसके फंक्शन के लिए। ओके, so that's very very important. So primary structure is very very important regarding the information regarding the position of an amino acid in a polypeptide chain. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस एक प्रोटीन के अंदर होती है, एक प्रोटीन के अंदर एक टाइप की सीक्वेंस, दूसरे प्रोटीन के अंदर दूसरे टाइप की सीक्वेंस, राइट। तो सीक्वेंस ऑब्वियसली दो प्रोटीन्स के अंदर सेम नहीं हो सकती है अमीनो एसिड्स की। अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस होती है दो प्रोटीन्स के अंदर वो सेम नहीं हो सकती है, इसीलिए वो दो डिफरेंट प्रोटीन्स हैं। लेकिन मसला है ये अमीनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है, ये जो पोजीशन है अमीनो एसिड्स की एक प्रोटीन के अंदर, ये किसने तय की है? हु हैव डिसाइडेड दिस पोजीशन ऑफ एन एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन? तो ये आपको जानना है, ये आपको समझना है। ये जो चीज़ है, चाहे हम कहें पोजीशन ऑफ एन एमिनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन या हम कहें सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड। इट इज जेनेटिकली, ये जो पोजीशन होती है इट इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड। इसके लिए ज़रूरी जो है एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, राइट। और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये डिटरमिन करे कि कौन सा अमीनो एसिड एक पॉलीपेप्टाइड चेन में कहाँ पे स्पेसिफाई होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे पहला वाला अमीनो एसिड इस प्रोटीन के अंदर, ये कोई प्रोटीन है तो इसके अंदर जो पहला वाला अमीनो एसिड है ग्लाइसिन है, तो इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, राइट। और वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए से आएगी, राइट। और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो है एक प्रोटीन बनने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डीएनए से जो इन्फॉर्मेशन आती है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए आती है, राइट। वो इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए आती है। तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे ये एमिनो एसिड रखा गया है पॉलीपेप्टाइड चेन में, पहली पोजीशन पे ग्लाइसिन है, तो इसके लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई कोडान होगा, एक कोडान होगा जो एमआरएनए के अंदर है, लेकिन पहले सबसे पहले वो डीएनए पे था, राइट। तो डीएनए की ये कोडान्स, राइट, जो एमआरएनए लेके आता है, फिर उसके बाद एक एमिनो एसिड जो है स्पेसिफाई हो जाता है, उसकी पोजीशन स्पेसिफाई हो जाती है एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, राइट। तो इस तरीके से पूरे प्रोटीन की जो लीनियर सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स की वो तय हो जाती है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझना है कि ये जो लीनियर सीक्वेंस एमिनो एसिड्स की है, पोजीशन जो है एमिनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ये कैसे तय होती है। तो इसके लिए इंफॉर्मेशन जो है, ब्लूप्रिंट जो है वो डीएनए के अंदर है, राइट। उसके बाद डीएनए जो है ट्रांसक्राइब हो जाता है, एक एमआरएनए बन जाता है, और एमआरएनए की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन्स के लिए यूज़ होती है, और वो यही चीज़ तय करती है, पहली चीज़ यही तय होती है कि कौन सा एमिनो एसिड किस जगह पे होगा एक प्रोटीन के अंदर, राइट। So this is very very important point. Now the one more point regarding the primary structure is that कि जब हम लीनियर सीक्वेंस की बात करें, यहाँ पे एक इम्यूनो एसिड जो है दूसरे इम्यूनो एसिड के साथ लिंक है, तो एक ही बॉन्ड हमें नजर आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, हम एक बॉन्ड को देख सकते हैं क्योंकि ये पहली लेवल है, अभी दूसरी लेवल या तीसरी लेवल नहीं है। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इसमें एक ही बॉन्ड हमें नजर आएगा। तो पहल यहाँ पे जो बॉन्ड नजर आता है वो जो है पेप्टाइड बॉन्ड, राइट, पेप्टाइड बॉन्ड। So in primary structure only one bond we can see, only one bond is there, that is called a peptide bond. यहाँ पे आप फिर से इस पेप्टाइड बॉन्ड को यहाँ पे देख सकते हैं, इस यहाँ पे दो एमिनो एसिड्स को लिंक किया गया है, द बॉन्ड between the two amino acid, this is amino acid 1 R1 representing the amino acid 1, it's the side chain of an amino acid, okay, you know that, but this is the structural formula of the amino acid, and this is one more structural formula of the amino acid, and the two amino acids are linked by this bond,
the bond between the carboxylic group of the one amino acid and the amino group of the another amino acid. Now it is CN bond, right? This is carbonyl oxygen, this is amide hydrogen, and between the carbon and the nitrogen, this is this bond. This is called peptide bond, and we know that this peptide bond is a special bond. It's a strong bond because it's having the partial double bond character. We know this thing, right? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बच्चा जो है आपको यही चीज़ समझनी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये लीनियर सीक्वेंस होती है एमिनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो लीनियर सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ये हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में, एक प्रोटीन के बारे में कि कौन सा एमिनो एसिड जो है कहाँ पे है, पहला वाला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है। और ये जो पोजीशन है एमिनो एसिड्स की एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ये एक प्रोटीन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसके स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो फाइनली बाद में तय होगा, राइट, और इसके फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल ऐसे भी समझें कि कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है किसी जगह पे कि एक एमिनो एसिड जो था नॉर्मली एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो दूसरे एमिनो एसिड से बदल गया। जब जीन्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जब कोई म्यूटेशन हो जाती है, तो पूरे प्रोटीन पे फर्क पड़ता है। ये आप आगे आने वाले क्लास में भी सीखेंगे, राइट। जब एक एमिनो एसिड जो पॉलीपेप्टाइड में होना चाहिए था नॉर्मली, वो दूसरे एमिनो एसिड से रिप्लेस हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे और उसके फंक्शन पे और ओवरऑल एक बॉडी पे, राइट, एक इंडिविजुअल पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी वजह से। ओके, तो व्हाट आई मीन कि ये जो लीनियर सीक्वेंस है एमिनो एसिड्स के एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइज here is who is deciding this linear sequence of amino acids in a polypeptide chain, right? How it is specified? तो वो मैंने बोला आपको, ये सारा जो माजरा है ये जीन्स का माजरा है, ये कोडान्स का माजरा है, और जीन्स और कोडान्स की जो बात करें तो ये डीएनए के अंदर होती है, राइट। तो डीएनए पे ये इंफॉर्मेशन है कि एक प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड जो है वो कैसे स्पेसिफाई होने चाहिए और उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो एवरीथिंग इज जेनेटिकली डिटरमिन्ड, राइट। और लास्ट पे जो पॉइंट मैंने बोला आपको कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड हमें देखने को मिलेगा वो होगा ओनली वन बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड, जो दो अमीनो एसिड्स को लिंक कर रहा है, राइट, पहले वाले और दूसरे को, दूसरे का बॉन्ड होगा तीसरे के साथ। सो इन दिस वे द बॉन्ड्स दैट आर लिंकिंग द अमीनो एसिड्स एंड पुटिंग देम इन अ लीनियर सीक्वेंस इज द ओनली वन बॉन्ड, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। लेकिन ये जो है ये सारा जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में है। इसके बाद जो दूसरी लेवल होती है प्रोटीन की उसको कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। The another level of the protein is called secondary structure of the protein. तो secondary structure of the protein कैसे stabilize होगा? How the secondary structure of the proteins are stabilized? पहले आप एक बात समझ लीजिए कि ये अभी तक ये जो चेन थी ये ऐसी थी, राइट, एक लीनियर चेन थी जिसमें एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस थी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा एंड सो फॉर। नाउ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट, वो कैसे एग्जिस्ट होगा, वो कैसे स्टेबलाइज होगा। यहाँ पे आपने इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक ही बॉन्ड देखा, वो है पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ और इंट्रैक्शंस हमें नजर आती हैं जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एग्जिस्ट होंगी, और जिन इंट्रैक्शंस की वजह से, जिन बॉन्ड्स की वजह से पॉलीपेप्टाइड चेन का जो अभी तक नेचर था, लीनियर नेचर था, लीनियर सीक्वेंस था, राइट, वो जो है वो बदल जाएगा। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसको हम ऐसे नहीं देखेंगे, एक लीनियर सीक्वेंस में नहीं देखेंगे, बल्कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये हमें थोड़ा सा फोल्डेड नजर आएगा, ऐसे हेलिक्स में नजर आएगा, राइट। लेकिन मसला है ये हेलिक्स जो है एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो अभी तक लीनियर हमें नजर आ रहा था, अब ये फोल्डेड हेलिक्स स्ट्रक्चर में कैसे एग्जिस्ट हो गया। तो आपको ये चीज समझना है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इफ आई विल राइट हियर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर of protein, secondary structure of proteins is stabilized by हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक नई चीज आई एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। अभी तक इसमें एक ही बॉन्ड था जो दो अमीनो एसिड्स को लिंक किए था, दैट वाज पेप्टाइड बॉन्ड, बट अब इसमें एक और इंट्रैक्शन बढ़ गई, एक और
इसमें फोर्स बढ़ गया, तो वो जो फोर्स है, वो जो इंट्रैक्शन है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसकी वजह से जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का नेचर ही बदल गया। अभी तक ये लीनियर था, लेकिन अब ये कुछ और नज़र आ रहा है, एक फोल्डेड स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है। कहीं कहीं पे हमें ये जो है टर्न्स नज़र आ रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है ये हेलिकल स्ट्रक्चर में बदल गया, राइट। तो ये जो है, ये सारी चीज़ हुई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुई। तो जो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जो भी प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स में हमें मिल जाते हैं। बहुत सारे फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, जैसे कोलेजन है, राइट, इलास्टिन है, तो वहाँ पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लीनियर नहीं होते हैं, बल्कि फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को स्टेबलाइज करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो ये चीज़ है, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट्स द मेन थिंग इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स व्हेन वी कंपेयर इट विद द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में जो नई इंट्रैक्शन एग्जिस्ट होगी वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो दो टाइप्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जो हैं हमें जनरली मिलते हैं प्रोटीन्स में। देयर आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इन प्रोटीन्स। एक जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम अल्फा हेलिक्स, एक जो स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं हम अल्फा हेलिक्स, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ये दो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन, सेकेंडरी लेवल है प्रोटीन्स की। और आपको ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ दी स्ट्रक्चर्स अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर्स आर स्टेबलाइज्ड बाय द सेम बॉन्डिंग दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही एग्जिस्ट होते हैं, राइट। तो इसमें पहला वाला जो है दैट इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। तो ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लीनियर था अभी तक, अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे बना, तो हाउ दिस हेलिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्मड, राइट। एक चेन जो है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन, वो कैसे हेलिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पे जो ये हेलिक्स एग्जिस्ट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होगा, एज आई टोल्ड यू। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किसके बीच होगी, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी अल्फा हेलिक्स के अंदर, अल्फा हेलिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी विद इन द चेन, दैट विल ऑकर विद इन द चेन, इंट्रा चेन होगी ये, विद इन द चेन मीन्स इंट्रा चेन होगी ये, राइट। और किसके बीच में होगी, इसमें जो हिस्सा लेंगे, जो चीज़ें हिस्सा लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, वो होगा एक एमिनो एसिड का ये वाला ग्रुप, कार्बोनियल ग्रुप कहते हैं इसको, कार्बोनियल ऑक्सीजन कहेंगे इसको, कार्बोनियल ऑक्सीजन जो एक एमिनो एसिड के अंदर होता है। और दूसरा जो हिस्सा लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो होगा दूसरे एमिनो एसिड का अमाइड हाइड्रोजन, ये NH, इसको हम अमाइड हाइड्रोजन कह सकते हैं, इसको हम अमाइड हाइड्रोजन कह सकते हैं। तो ऐसे दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जब हिस्सा लेंगे, राइट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है अगर ये दोनों चीज़ें एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर हैं। एंड वी नो दैट कि एमिनो एसिड्स जो हैं, एमिनो एसिड्स की जो अभी तक लीनियर सीक्वेंस थी एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में, वहाँ पे एक एमिनो एसिड में हमें ये ग्रुप भी मिल जाता है और ये ग्रुप भी मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। दैट मीन्स the carbonyl oxygen of the one amino acid with the amide hydrogen of the another amino acid। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो चेन है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल इस जगह पे फॉर एग्जांपल एक का कार्बोनियल ऑक्सीजन है, राइट, ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे दूसरे साइड से इसका NH और इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाएगा। और यहाँ पे भी फॉर एग्जांपल अगर हम इस टर्न में लिखें, यहाँ पे ये एक टर्न है, राइट, ओके, तो इस जगह पे आप अमाइड हाइड्रोजन रख दो और यहाँ पे कार्बोनियल ऑक्सीजन रख दो इस साइड से, तो बीच में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड
बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से पूरे इस हेलिक्स में जो हैं बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और उन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो इंट्रैक्शन है उसी की वजह से ये स्ट्रक्चर जो है एक हेलिक्स में एग्जिस्ट हो रहा है। और इसकी जो पूरी स्टेबिलिटी जो है वो भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तो अगर हम यहाँ पे मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर दे, राइट, ब्रेक कर दे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सटेंड हो जाएगा, फिर से लीनियर बन जाएगा, राइट, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दे। तो जब तक ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चेन के अंदर होगी बिटवीन द कार्बोनियल ऑक्सीजन ऑफ द वन एमिनो एसिड एंड द अमाइड हाइड्रोजन ऑफ द अनदर एमिनो एसिड, तो तब तक ये जो स्ट्रक्चर है ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या ये जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ये दो एडजेसेंट एमिनो एसिड्स के बीच में बन जाता है या कुछ और है। यहाँ पे जो क्या होता है जनरली एक अल्फा हेलिक्स के अंदर जो एक स्टेबलाइज्ड अल्फा हेलिक्स है वहाँ पे ये जो कार्बोनियल ऑक्सीजन है ये एक एमिनो एसिड का और ये जो है अमाइड हाइड्रोजन है ये दूसरे एमिनो एसिड का, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी यहाँ से लेके इस कार्बोनियल ऑक्सीजन से लेके इस अमाइड हाइड्रोजन तक बीच में जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो होते हैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली हम 3.6 भी कह सकते हैं और वी कैन टेक 4, तो 4 एमिनो एसिड्स हैं बीच में 4 एमिनो एसिड्स हैं, यानी ये एडजेसेंट 2 एमिनो एसिड्स के बीच में नहीं बनता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, बल्कि कार्बोनियल ऑक्सीजन जो है वो एक एमिनो एसिड का है। देन देयर आर 4 एमिनो एसिड्स, गैप ऑफ 4 एमिनो एसिड्स एंड देन अनदर एमिनो एसिड व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, दैट लाइज 4 एमिनो एसिड्स अवे फ्रॉम द फर्स्ट वन। सो इस तरीके से जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, एडजेसेंट एमिनो एसिड्स के बीच में नहीं बनती है, बल्कि जो 2 एमिनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, एक का कार्बोनियल ऑक्सीजन दूसरे का अमाइड हाइड्रोजन, तो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो तकरीबन 3.6 एमिनो एसिड्स का होता है, या हम 4 बोल सकते हैं, वी कैन टेक 4, राइट। तो इस तरीके से ये हेलिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट हो जाएगा जिसको हम अल्फा हेलिक्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये अल्फा हेलिक्स है ये 2 टाइप्स का हो सकता है। इसमें जो ट्विस्टिंग है, इसमें जो टर्न्स हैं ये ऐसे भी हो सकता है, अगर मैं ऐसे इसको ड्रॉ करूं, या ये ऐसे भी हो सकता है। इन दोनों में जो फर्क है, ये जो हेलिक्स है ये राइट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, ये एक राइट हैंडेड हेलिक्स है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, ये एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, ओके, ये एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है। तो दोनों पॉसिबल हैं। दिस हेलिक्स व्हाट वी कॉल एज अल्फा हेलिक्स which is stabilized by the hydrogen bonds within the chain, right, it can be right handed helix, it can be left handed helix, but जो stability है जैसे हम प्रोटीन्स में देखते हैं तो जो stability है एक हेलिक्स की वो ये वाला हेलिक्स है, that is right handed helix। तो right handed helix is more stable than the left handed helix, इसीलिए जो naturally occurring proteins हैं अक्सर उनमें हमें यही वाला हेलिक्स देखने को मिलता है, दैट इज राइट हैंडेड हेलिक्स बिकॉज ऑफ इट्स मोर स्टेबिलिटी, राइट। तो ये एक और पॉइंट है अल्फा हेलिक्स के बारे में। नाउ दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरी जो एग्जांपल है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की वो है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द अल्फा हेलिक्स। यहाँ पे है जो है बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर, लेट मी राइट अगेन। तो बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो दो चेन्स के बीच में हो सकती है। ये 2 छोटी चेन्स हैं, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये वाली एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हम नीचे बना लेते हैं, राइट। तो इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी, राइट। या ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है लेकिन उसके 2 सेगमेंट जो हैं वो हिस्सा लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो इस तरीके से ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है, लेकिन स्टेबिलिटी जो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर की है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पहले वाले में देखें, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, राइट। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका मान लीजिए आप यहाँ पे एक कार्बोनियल ऑक्सीजन है, इसका C डबल बॉन्ड O, और इसका जो है इसका अमाइड हाइड्रोजन है, तो ये इसके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर ही हम ये अमाइड हाइड्रोजन लिख दे, दैट इज NH, ओके, और नीचे हम लिख दे कार्बोनियल C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा।
तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगी वो दो अमीनो एसिड्स के बीच में होगी, लेकिन यहाँ पे ये दो चेन्स के बीच में हो रही है। इट्स नॉट द इंट्रा चेन, इट इज इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में जो ये है ये इंटर चेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जहाँ पे एक अमीनो एसिड जो है यहाँ पे है और दूसरा अमीनो एसिड जो है वो यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे एक अमीनो एसिड है और उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल हो जाती है, राइट। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो है दूसरी यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने दी, यहाँ पे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये इसके दो छोटे सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक अमाइड हाइड्रोजन रख देते हैं हम और एक अमीनो एसिड, और यहाँ पे जो है ये कार्बोनियल ऑक्सीजन, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ पे कार्बोनियल ऑक्सीजन रख दीजिए, यहाँ पे अमाइड हाइड्रोजन रख दीजिए, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो जाएगा, ये भी एक बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो छोटी चेन्स हैं जो हिस्सा ले रही हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, यहाँ पे एक ही चेन है जो फोल्ड हो चुकी है, जो जिसका एक टर्न है, राइट। और फिर ये दो छोटे सेगमेंट जो हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के, वो हिस्सा ले रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर जो होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है, राइट, इट्स नॉट हेलिकल, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी या तो दो चेन्स के बीच में हुई या दो छोटे सेगमेंट्स के बीच में हुई, राइट, ओके। जिसमें एक चेन जो है वो यहाँ पे है और दूसरी चेन जो है यहाँ पे है, ये रन कर रहे हैं, they are running side by side, they are aligned side by side। यहाँ पे भी ये जो दो सेगमेंट्स हैं एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के, तो दे आर आल्सो अलाइंड साइड बाय साइड, राइट। ये यहाँ पे अगर हम इन दो चेन्स को देखें तो ये पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल आपको समझ आ चुका है क्लास में। ये जो चेन है इसका ये टर्मिनल जो है N है और ये जो है ये C है। अगर हम नीचे भी यही लिख दें N और यहाँ पे लिख दें C, तो ये पैरेलल है ये दो चेन्स, राइट, दीज आर रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन ये ऐसे भी हो सकता है अगर हम यहाँ पे एक C रख दे, C टर्मिनल कार्बोक्सिलिक टर्मिनल, और यहाँ पे हम N रख दे, तो दीज आर एंटी पैरेलल, राइट। तो जनरली जो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, आई मीन प्रोटीन का एक ज़बरदस्त सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो स्टेबल है, जिसमें स्टेबिलिटी है, तो वो यही है, दैट इज एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। तो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आर मोर स्टेबल देन द पैरेलल, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट, ओके। तो ये बहुत कॉमन है, एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर than the parallel, why? Because of the stability factor, okay, is it clear? तो यहाँ पे कोई हेलिक्स नहीं बनेगा, they will not exist in the helix, rather they can run parallel or they can run anti parallel, and the bonding, hydrogen bonding, right, hydrogen bonding occurs between the carbonyl oxygen of one amino acid present on the one chain or one segment and the amide hydrogen of the another amino acid which is present on the another chain or another segment। तो इस तरीके से ये दो स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट हो जाएंगे, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, दोनों जो एग्जिस्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ए न्यू इंटरेक्शन दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड दैट न्यू इंटरेक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है आपकी क्लास में, क्लास 11th है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में नया क्या है। तो नए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो नई चीज़ है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं था। प्राइमरी स्ट्रक्चर में एक ही बॉन्ड था, लीनियर सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स की थी, राइट, और एक ही बॉन्ड हमें दिखाई देता था, वो था दो एमिनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अलावा सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अलावा जो स्ट्रक्चरल लेवल है प्रोटीन की, उसको हम कहते हैं टर्शरी, एंड देन वी हैव द लास्ट वन दैट इज क्वाटरनरी। तो ये हम अगली क्लास में देखेंगे व्हाट इज़ द टर्शियरी स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। लेकिन इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूँ, मैं ये क्लास जो है, ये लेक्चर जो है फिनिश करूँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि उन दो स्ट्रक्चरल लेवल्स में और इंट्रैक्शंस डेवलप होंगी, कुछ और फोर्सेस जो हैं वो हिस्सा लेंगे, तब एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो अभी लीनियर था अब एक हेलिक्स में आया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो वो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो जाएगा, राइट। एक प्रोटीन जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्ट्रक्चर, उसका नेचर जो है वो उस
थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से ही होगा। लेकिन वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे स्टेबलाइज होगा, उसको कौन प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी, वो हमें देखने को मिलेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर में। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो कैसे एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को बना देगा, राइट, एक बड़ी सी लेवल प्रोटीन की बनेगी। तो दोनों में फ़र्क क्या होगा वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, राइट। सो हैव अ गुड डे।